क्वेश्चन आपका पूजा से पूछ लो, पूजा इज वेरी एक्टिव। पूजा मैम, सिचुएशन बेस्ड एनी क्वेश्चन। पूजा मैडम गेट रेडी। हां जी व्हाई यू जॉइन एनवीएस? मैम मेरा स्टार्टिंग से मतलब टीचिंग का सपना रहा था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और एनवीएस में मैं इसलिए के आना चाहती हूँ क्योंकि एनवीएस में ना आल मतलब सारे एरिया के बच्चे, मतलब जो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मतलब हमें हर धर्म के, हर कास्ट के, या मतलब उसमें कोई डिफरेंस या ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी है, तो हम हर तरह के बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसमें मैम जैसे रूरल एरिया के बच्चे होते हैं तो हम अपना योगदान उनको ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि वो थोड़े बैकवर्ड एरिया से और आते सर हैं। एक बात और है कि वहाँ पर मार्कर नहीं है, चौक भी नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है। ओके, कोई प्रॉब्लम लिखने में? मैम सर हमसे पूछा तो हम तो बोल दिए हमको नहीं चलाने आता है। Then what तो they बोले said कि to वहाँ you जाओगी तो क्या doesn't matter, करोगी? that is not a issue। तो मैंने मैम बोला कहाँ मैं पे सीख था आपका? लूंगी। वो आपके सिलेक्शन को हैम्पर नहीं लखनऊ। करेगा, श्योर है ये। लखनऊ में था मैम, मेरा भी लखनऊ है मैम। हाँ लखनऊ, हाँ Hello? Feel worried. No, this is not a matter of your selection or not, doesn't matter। Hello Munesh। Yes sir, good afternoon Madam, sir। आपका क्वेश्चन Munesh, I want that you हाँ should ask जी। one situation based question to our boys team। आप हमारे किसी भी बॉयज दोनों में से कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए, सिचुएशन और एनीथिंग। They are also going for like you। He is from computer, he is from physics, economics, commerce. That's a part of economics, is part of commerce. difference। Difference. Branch. There is a difference। Please। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा पहले से लेट नहीं आता था लेकिन 3-4 दिन से लेट आ रहा है तो आप क्या करेंगे? This situation is possible in NVS. Our students are there. Then what happen? It can be possible। भाई बच्चा तैयार होकर लेट आ रहा है। Then we find the reason behind it. First of all, You will find the reason, but how? That only she want to know। Reason तो आप फाइंड करेंगे क्योंकि आप टीचर हैं। कैसे? मैम हाँ जी शुभानिल। हाँ मैम, at first I will try to identify the causes of their late coming to शुभानिल school. please wait। Vikas want to answer, after that I will give you chance। Please Vikas। Yeah. Okay. First of all, I want to meet the student personally, and I want to find out the thing from the student herself or himself also. And if I found the reason why he is getting late, why because of sickness or because of any particular reason, then I try to reduce or that obstacle. शुभानिल please answer। So at first I will try to identify and determine the causes of the late coming in school, and particular in my class. Okay. And they are regularly late in my class. I will contact their parents and try to know the cause behind the late coming in my class. Okay। And sometimes I will try to guide and counseling those children who are late coming, and I will try to mitigate these complications. Good। But what about the parents? Why you are naming? Because in NVS you are the only parents। It is a residential school, so it is the not matter of the late coming, but it is It can be, but you can't discuss this thing going with the parents because here you are responsible for all these activities। It is a residential school. This late coming is not So possible in accordingly we NVS. must have some right solution। Understood? But I will try to guidance and counseling those students who are late coming in my class. Okay। so first of all, guideline क्या बोलते हैं, counseling करेंगे उनकी। Yes। Any help they want, special any help, any counseling करना, ये तीन ही point होता है। Hello Alka। Alka, are you there? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम विजय लक्ष्मी भी है, उनको हाय हेलो कर लो। हेलो, एक्चुअली मुझे कोई दिख नहीं रहा है सर। Might be the net problem। प्रियंका you want to ask any question from anybody? आपके सामने सभी है, आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगी प्रियंका? सर मुझे फिजिक्स वाले सर से क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल, फिजिक्स वाले तो तैयार बैठे हैं, खूब पूरी एनर्जी जहन में है, खूब एनर्जी से भरे हुए रहते हैं।
चलिए सर आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? चलिए जी। Actually, madam, teacher is my passion, and I. And second thing, I contribute to nation by build the career of a child, and I help my society. सर आपने Okay, इससे sir, पहले कभी thank you. टीचिंग की है? Yes, ma'am. ओके। How many years? Tell her. So she I will. have 7 years experience, ma'am. Well experienced person he is. As a CC. वाह सर आपका तो सिलेक्शन है फिर। आपको सर ऐसा डेमो कुछ में नहीं, कोई ma'am, परेशानी assured नहीं कहीं होगी। कुछ नहीं है। सर का 10 ईयर का है और रेखा मैडम का 10 ईयर का है। यहाँ 7 ईयर बैठे हैं। सर हम तो फ्रेशर है, हमें डेमो में बहुत तो प्रॉब्लम हम आएगी। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं ये नहीं। सर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं? English, State English. government में Shubhanil, करते हैं? please. I Speak in request English. you. You people have the command on little bit on English. कल आपको Okay, sir. problem ना हो। Request है. I am making a rule on my class also that you should speak as much English. In interview, you can be bilingual. It is your choice. But at least few angles you should be speaking only in English. Munesh, any more question from our girl side, please? 3 ladies are there. See. Munesh. Munesh, your voice is not coming. Yes, ma'am. What is your contribution in NES? Munesh, ma'am. शायद उनका वॉइस नहीं आ रहा है। शुभनिल, you can ask question from हाँ, our 3 members. हाँ, are you taught in state government high school? रेखा मैडम आपसे पूछ Physics? फिजिक्स हाँ, Teaching as a हाँ, are private you in a private school, sir. private school? Okay, Yes, sir. sir. Shubhanil, come So you little have bit taught- nice on the camera, like your see Only- visibility is not good here. Yes, now it is. Please ask Shubhanil. I suggest you should not be biased only on boys side. I suggest you should ask question from our 3 members of girls also, please. Chemistry, Ma'am, maths, and commerce. Commerce. पूजा, Okay. प्रियंका, आप भी Ma'am, पूछो। ma'am, मैम ma'am, नहीं, नाम distinct लो, मैम नहीं, commerce नाम का लो, ma'am आप बोल- confused। who is the ma'am? Commerce ma'am? is there. Harpreet? Harbi, yes. Ma'am, please tell me the difference between debit and credit in balance sheet. Come on. Yes, sir. Sure, sir. There is a basic difference in debit and credit, but you can't define it on the basis of that what is debit and what is credit. It is explained on the basis of approaches. Like there is modern approach and there is traditional approach. In modern approach, we have 5 contents: assets, liabilities, capital, revenue, and expenditure. So these are the 2 sides of account. Because we prepare an account in T-shape basis, so there is the left side and there is the right side. So the left side is debit and the right side is credit. So for the assets, if anything is gaining, we are adding something, we are having purchasing an asset, so there will be a debit. And if we are selling the asset, there will be credit. So it varies with the type of head of the account. So if it is liability side, if liability is increasing, we will if liability is getting decreased, it will come on debit side. Okay, sir. And there is a revenue and expenditure also. Very good way of answering. Biology candidate Priyanka, get ready. Ma'am, Yes, sir. in night, if yellow light is falling on red floor, then what is the color of that? यदि अंधेरे में रेड रोज के ऊपर येलो लाइट गिरती है तो उसका रंग कैसा होगा? ब्लैक कलर हो जाता है सर। Why? मेरे ब्लैक कलर। He is asking why. Any reason? Refraction, reflect, कुछ कारण होगा? Yes. I can't think at time. Because any color are seen due to scattering of light. रेड रोज क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे पास लाइट है ना, वो रेड रोज को क्या कर रहा है, रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तभी वो रेड दिख रहा है। लेकिन जब हमने वहां पे क्या की येलो गिराई है ना, येलो को अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई लाइट वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो हमें ब्लैक दिखाई देगा।
Yes, sir. वेरी Reflection के नेक्स्ट। according. हाँ हाँ मैडम हिंदी वालों से पूछ लो। what is the outer layer of eye and which color of that layer? That's the part of bio. Outer layer is sclera, sir. Right. Outer layer of madam, eye is name of sclera. outer layer. हाँ, which type of color? The white aqueous chamber जो होता है वो white रहता है mainly. And cornea is the part of that layer or not? Cornea is also a part of sclera, which mainly helpful in the vision. And color of a pupil? Color of pupil. I don't think so. Color of iris? Black. Gray matter और white matter रहता था eyes में. हमें आपको कैसे बताओगे कि हमारे अंदर हमारी आंख के अंदर आइरिस कौन सा है, पिपिल कौन सा है? तो जो छोटा वाला स्मॉल पॉइंट जो होता है वो आइरिस रहता है, प्यूपिल। छोटे वाला कौन सा पार्ट? जैसे हमारे आई है, इसमें 3 पार्ट हैं, दिखाई दे रहे हैं, मैं आगे इसको देख रहा, 3 कलर दिख रहे हैं, 3 पार्ट है इसके, एक मिडिल पार्ट है, एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। तो जो इनर पार्ट है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो प्यूपिल कहलाता है, और जो आउटर पार्ट है वो हमारा आइरिस कहलाता है। आउटर पार्ट आइरिस कैसे हो सकता है मैडम? आउटर पार्ट तो कॉर्निया है। आउटर पार्ट क्या है? बिल्कुल फ्रंट में आउटर पार्ट, हमारा बिल्कुल फ्रंट पार्ट आउटर है। तो मैं फ्रंट पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं मैडम। यस सर। And cornea have no color because these are transparent. ओके नेक्स्ट। रेखा आप है ना हिंदी वाले टीचर से पूछो, पूजा से और मुने से कोई क्वेश्चन पुट अप करें हिंदी का, कोई फटाफट करना प्लीज। यस पूजा मैम, कोई कविता करानी है, कैसे कराओगे? मी? यस हाँ जी। मेरा हिस्ट्री है मैम। ओ सॉरी। अलका। हाँ मुनेश। यस अलका मैम। अलका मैम का इंटरव्यू हो गया, अलका मैम से पूछो कैसा हुआ। हेलो आपके जी जी अलका मैडम कैसा हुआ इंटरव्यू बताइए। इंटरव्यू ठीक रहा सर। बस मैं सबको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको जो आता है प्रेजेंट टाइम पे उसको अभिव्यक्त करना सीखें। बस सब अभी इंटरव्यू का सबसे मेन फंडा यही है कि आपको उस टाइम आप उसको बेहतर तरीके से बोल पाए। बहुत सारी चीजें हमें आती हैं लेकिन उस समय हम बोल ना पाए हम तो उनके फिर वो सामने 5-10 तो आते हुए चीजें भी भूल जाते हैं ना। नहीं 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 भूलोगे, नहीं भूलो, मत भूलो, ऐसा नहीं। यू विल। मैं ये कह रही हूँ कि आप अभिव्यक्ति अपना अच्छा करें बस, और कुछ नहीं। बाकी ज्ञान सबके अंदर होता है। वेरी गुड। और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अलका जी कोई सर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था क्या, कोई ऐसा कोई नया कोई? नहीं सर, बस मैंने जितने लोगों से बात की सबसे बस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे सर। बढ़िया। या बहुत आपसे नहीं पूछा गया मैम कुछ? नहीं, और या किसी से ये देखो भी पूछ ले दिया रहे थे मैम। कि आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, बस इससे ज्यादा कोई और क्वेश्चन अलग से नहीं पुट हो रहे थे। बाकी वो हिंदी था और सब्जेक्ट वालों के साथ हो सकता है, मैं कह नहीं सकती। नो प्रॉब्लम। मैं आपसे पूछ रही थी, मुझे कंप्यूटर मतलब 5-6 साल हो गए मैंने किया हुआ है, लेकिन सब भूल गई। तुमको ऐसे बोल सकते नहीं हो मैडम कि आप मतलब बोलिए recall हाँ हो कि जाएगा? कंप्यूटर वो बेसिक जानना चाहते हैं और ज्यादा नहीं जानना चाहते। डोंट वरी। हाँ बस ये पूछ सकते हैं आपको बेसिक, और क्या आपको चलवा के नहीं देखते हो, पूछते हैं बेसिक आपको आता है कि नहीं, बाकी और नहीं कुछ और आप ज्यादा अगर अपना मोबाइल यूज प्रॉब्लम करते हैं तो कंप्यूटर यू आर यूज्ड टू, डोंट वरी एट ऑल। नहीं सर, इसमें तो कंप्यूटर फॉर्म कोर्स भरते किया हुआ है मैंने 1 ईयर का, पर वो 2012 में किया था, तो सर, मतलब सब ना के बराबर हो गया। मैडम मेन पॉइंट मैं हमें याद बताना रहते चाहूंगी हैं। सर। हाँ जी विजय जी। सर मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने मेरे से भी पूछा था कि तुमको कंप्यूटर कितना आता है, तो हम कहे सर बहुत जरूरत भर का आता है। तो करे पेपर बना लेती हो, तो मुझे नहीं आता था तो मैंने मना कर दी। ओके पावर पॉइंट वगैरह बनाना आता है, बना सकते हो। टाइपिंग आपको आती है? और अभी आपके पास समय है, अगर जिसको पास टाइम हो कर ले। हेलो सिद्धिका। और उनके सामने तो कंप्यूटर पड़ा हुआ था, वो पक्का था कि दे देते बनाने के लिए। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी,
हर जगह अलग चीजें हो रही हैं, तो क्या कहाँ सिचुएशन बने ये कहा नहीं जा सकता। जितने सब्जेक्ट वालों से बात करो सबके यहाँ अलग अलग सिचुएशन सामने आ रही है, तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रख के जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। अलका मैम डेमो भी हुई है, डेमो। सिद्धिका, हाँ लिया था ना। नहीं डेमो अच्छा था, डेमो की कोई दिक्कत नहीं है। डेमो आपको दे देंगे टॉपिक। सिद्धिका आप आइए सामने। पेडागोजी क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं? हेलो सिद्धिका, हाउ आर यू? प्लीज एक बार शांत रहिए, मैं मिलवा रहा हूँ आप लोगों को मेरी स्टूडेंट से। सिद्धिका कैसे हैं आप? सर ठीक है। सिद्धिका भाई, सिद्धिका का जी। सब्जेक्ट उर्दू है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इंटरेक्ट करें सिद्धिका से। इनका हार्डली फर्स्ट डे है। यस्टरडे प्रियंका का भी कल ही ज्वाइन हुआ है हमारे पास, और सिद्धिका का भी कल ही ज्वाइनिंग था हमारे पास। सिद्धिका आपका सब्जेक्ट उर्दू है, राइट? जी जी सर। और आप पर्टिकुलर प्लेस कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सर कानपुर जिले से है, लेकिन हमारा 40 किलोमीटर एक नगर पड़ता है, नगर ही है, नगर पालिका ही है, घाटमपुर वहाँ के। पूजा, मैं चाहूंगा एक मैम उर्दू आपने रिलेटेड उर्दू ही क्वेश्चन क्यों पुट अप चुना? करें आप मैडम से, सिद्धिका से, तो शी विल बी मैम से मैं कंफर्टेबल इन पूछना योर मैं चाहूंगी पूछ रही हूँ मैम आप। हेलो पूजा, क्वेश्चन पूछो कोई उर्दू रिलेटेड। मैम, आपने उर्दू सब्जेक्ट ही क्यों चुना, मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड? मैं तो ऐसा चुनने की कोई सर वैसे वजह तो नहीं होती है, लेकिन शुरुआत से ही हम मदरसे से ही पढ़े हुए हैं, तो वहाँ ज्यादातर उर्दू ही रहा है सब्जेक्ट हमारा। तो ऐसे हाई स्कूल इंटर में ही हमारा सब्जेक्ट उर्दू ही रहा। मैडम उर्दू के कोई ग्रेजुएशन में पोएट फिर का बढ़िया अच्छा आपके फेवरेट पोएट का नाम बताइए। मैम आप जो आपने फर्स्ट लाइन बोली है कि हम इसका कोई वो नहीं कर सकते, तो वो वाली लाइन आप ऐड नहीं करोगे? हाँ, थोड़ा सा जी वो जी रहता है। आपका फेवरेट पोएट बताइए सिद्धिका। मेरे फेवरेट पोएट्स हैं सर इकबाल हैं। ओके, उनकी कुछ रचना बता सकते हैं आप? जी जी, इनकी 4 है, उर्दू के 4 मजमूए हैं, मांगिदरा, बाल जिब्रील है, अरमगान हिजाज है। और आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट तो बांगिदरा रहती है सर, क्योंकि सर उसमें राज है देश के लिए एक कविता, मतलब एक नज्म ली है इकबाल ने, जो आप लोगों को सबको पता ही होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यस यस यस, बहुत बढ़िया। मैम से मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। उर्दू भाषा के रूप में आजकल मतलब कैसे उसका प्रयोग हो रहा है और क्या वो महत्ता रखती है? बताइए हर जुबान का, जी 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 मैम, हर जुबान का अपना ही एक महत्व रहता है सर। जैसे कि हिंदी हुई हमारी राष्ट्रभाषा है, वैसे भी उर्दू हमारी एक मातृभाषा ही रहती है, तो महत्व रीजनल तो लैंग्वेज। आदि। जी जी, उर्दू रीजनल की लैंग्वेज कुछ है विशेषताएं कि वो अदर लैंग्वेज में कहाँ सहायता करती है उर्दू? उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत जुबान है, इसमें बहुत ही तरह के मतलब शेर व शायरी कहे गए हैं, और देश के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी गई हैं। ओके। क्या उर्दू का कोई रिलेशन आप हिंदी से भी जोड़ती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उर्दू और ये हिंदी जुबान का जो उर्दू और हिंदी जुबान जी, का जो बेटे को उद्गम चुप हुआ है वो एक ही करवाइए। साथ ही हुआ है। अलका जी, बेटे को चुप करवाइए प्लीज। शुभानिल, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट से भी क्वेश्चन पूछो यार, विकास से। कंप्यूटर सर हेलो विकास सर। सर आप MS एक्सेल में आप मुझे ये बताइए, अगर हम बी और एफ में हम रो को डिफरेंस करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ पे एंटर करना पड़ेगा? मतलब रो बढ़ानी हमने। हाँ, रो बढ़ानी है तो सिंपल सी बात है, मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अगर रो का हाइट बढ़ाना है अगर आपको, तो आप रो के कॉर्नर पे रो पे सेट करें, और माउस के यूज करके आप नीचे रो के नीचे की लेंथ पे आप माउस रखकर उसको ड्रैग कर सकते हैं, तो रो की हाइट बढ़ जाएगी। और या फिर आप ऑप्शन पे जाकर हम मान लो हम मतलब बी और एफ के बीच में रो बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें बी को साइड करना पड़ेगा या एफ को साइड करना पड़ेगा? अगर आप बी और एफ के बीच में डालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात, आप एफ में कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट कर देंगे आप कॉलम। एक्चुअली बी और एफ के बीच में कॉलम ऐड होगा मैडम, है ना, रो ऐड नहीं होती, रो हमेशा हॉरिजॉन्टली ऐड होती है, वो वहाँ पे आपको कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, और एफ में कर्सर रखना पड़ेगा। बताना चाहोगी? कंफर्म कर शुभानिल। हाँ सर, व्हाट इज
HTML. HTML. HTML, hypertext markup language. Basically, it is a web designing language where we can design the text or images or different types of objects for the web pages. And it is operated over the web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Safari, and so on. मुनेश, आपको कोई पोएम पढ़ानी है बच्चों को, कैसे शुरू करेंगे आप? पोएम पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं बच्चों को डायरेक्ट पोएम के उस पर लेकर नहीं जाऊंगी। मैं उन्हें इशारों में, जैसे कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि भगवान के डाकिए, तो मैं उनसे बोलूंगी कि बच्चों ये बताइए कि अब मोबाइल चल गए हैं, लेकिन पहले हमारे पास संदेश कैसे आते थे। तो फिर वे बताएंगे कि मैम कैसे, मैं बताऊंगी कि बच्चों डाकिया लेकर आता। ओके, फिर आप उसकी भूमिका बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। यस, वन क्वेश्चन फ्रॉम शुभनिल। सर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है ना, कैसे मूव करती हैं, किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, कैसे बनती हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज? Land bridge or sea bridge. Land bridge is generally formed due to the exogenetic process of river and different agents of wind, and generally coastal bridge, which is generally formed due to the deposition and accumulations of the sand, seal, cobbles, pebbles, which are generally carried by the oceans. ब्रिज मूव करती है यार, एंड नाइट को कौन सी ब्रिज मूव करती है? आप लैंड ब्रिज बोल रहे हैं ना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज सर। ओके, लैंड ब्रिज, ओके, थैंक यू। हाँ, ओके। Land bridge, due to the variation of the temperature in land and ocean, generally in daytime the land receive more sunlight, and results there creates a low pressure. For these reasons, generally the bridge from the sea or the water generally moves from sea to the land. It generally activate in morning time, but at night, due to gradually radiated of the temperature from the land, and due to the reduction of the and gradually the increasing the temperature of the ocean, for this reason, or ocean or water, the air generally moves from land to ocean or seas. So this is known as land bridge, and sea bridge generally creates in morning time. Monica, tell what are the qualities a teacher must have according to you? Sure, sir. Equality should be aware of psychology, aware of his responsibility, and he should be he should understand the psychology of his student. He should be a good communicator. He should be innovative, and I think the student is like a clay, and a teacher is that person can transform it in any form, like a devil or God. So teacher play a very important role to enhance the potential of a student. हरवीर, अगर किसी को कॉमर्स लेक्चरर टीचर बनना है, कॉमर्स पढ़ाना है, तो क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कॉमर्स रिलेटेड टीचर के अंदर आपके अकॉर्डिंग? जी सर, कॉमर्स एक प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर है। यस, ये सर। सो सबसे पहले अगर किसी का इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर है और वो अपना फ्यूचर बिजनेस में बनाना भी चाहते हैं, या वो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम अपने मनी को कैसे करें, या हम अपनी मनी को कैसे अफोर्डेबल बनाए कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके, सो अपने अकाउंट्स को मेंटेन भी कर सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सके। इसलिए मुझे लगता है कि कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा साधन है जिससे हम अपने करियर और प्रोफेशन को इसमें ला सकते हैं। Wonderful. Priyanka, you are a biology student. I want you should explain us about the cell functions. Cell के क्या-क्या functions है? कितनी देर लगाओगी ना तो इंटरव्यू दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। You should have some energy. Yes sir. हाँ, बोन बेटा पीकर बैठा। सेल में भी चलिए।
Cell may be protective in function. ओके, Cell सेल की एक बिगेस्ट cell डिजीज है, उस डिजीज का नाम बताइए। बिगेस्ट डिजीज ऑफ सेल, क्या सर? सेल की एक बिगेस्ट डिजीज है, वो उसका नाम क्या है? सेल की सबसे बड़ी बीमारी का I नाम don't क्या है? I don't know sir. हाँ मैडम, क्या बात करते हो? कैंसर इज द बिगेस्ट डिजीज ऑफ सेल। व्हाट यू आर डूइंग? चलिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन कौन बनाता है? Ribosomes. वेरी गुड। और प्रोटीन डाइजेस्ट कहाँ होता है? Lysosomes. नो मैडम, लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। वो कहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट होता है। एंजाइम्स कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए? Stomach में सर? हाँ मैडम, स्टमक के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं। Pepsin. एंजाइम्स के नाम क्या है? रेनिन पेप्सिन मैडम, रेनिन पेप्सिन। हाँ, और फैट का एब्जॉर्ब होता है, फैट पेप्टिन होता है ना, पेप्टिन, लाइपेज फैट। Stomach में. स्टमक में नहीं होता, Fat फैट stored in स्मॉल stomach. इंटेस्टाइन में होता है। और उसको हेल्प कौन करता है? लीवर है, लीवर बाइल जूस भेजता है जो फैट को एब्जॉर्ब करता है। चलिए, मुझे ये बताइए, Liver bile कंप्यूटर juice. टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मिस्टर विकास। Yes. Sir, as a computer teacher, first off, any computer teacher must have the critical thinker. ठीक है? It's not only a subject of reading and writing or imitations. So he must have the critical thinker. He must have the knowledge of ICT. He must have the knowledge, even he is computer teacher, but he must have the knowledge of child psychology. He aware of his different types of programming languages and their interconnection also. He must have the sound knowledge of database and backend tools, and he must know the connectivity of front end and back end. This is वेरी गुड। रेखा मैडम, पर्सनल क्वेश्चन, नो इंटरव्यू क्वेश्चन। मैडम, अभी तक आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट थे, अब ऑफलाइन बने हो, डिफरेंस क्या है दुनिया में मैडम? ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफी डिफरेंस है। ऑनलाइन में हम उन चीजों को नहीं पता जो हमने यहाँ ऑफलाइन में आके सीखे। एक मेजर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने यहाँ आके ऑब्जर्व किए हैं कि मेरी गर्दन ऐसे कर रखी है, वहाँ ऑनलाइन में नहीं पता चलता कि हम कैसे बैठे हैं, क्योंकि वहाँ अपने घर पे होते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट सर हमें ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक एक गेस्चर्स को पॉइंट आउट करते हैं। वंडरफुल। पूजा, आप हमें ये बताइए कि आपको बच्चों को हिंदी में पढ़ाना है, मगर बच्चे कह रहे हैं मैडम हिंदी बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे क्लास में? सर मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आप ये भी मैडम एक इस तरीके से बच्चे कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट बहुत मैडम ऐसे है, पुरानी पुरानी बातें देखनी, तो आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? पूजा सर, बच्चों को हम स्टोरी टाइप में सुना सकते हैं या कुछ भी पहले की चीजें, जैसे बच्चों को पता होता है ताजमहल या हुमायूं का मकबरा, चलिए जो भी ताजमहल चीजें को ले मतलब लेते हैं, हिस्ट्री क्योंकि हमारे रिलेटेड पास होती यहाँ है। ताजमहल गर्ल है। देखिए, ये प्रियंका सिंह हमारी बैठी है और रोज ताजमहल देख कर आती है, ये तो रोज सुबह सुबह वहीं राउंड लगाते हैं। तो आप बताइए, आप कुछ इनके कि आप ताजमहल के बारे में कैसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? वो तो बच्चे तो कहेंगे मैडम जी वो सर, हम जैसे व्हाइट रंग के, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? सर हम है ना, मतलब पहले तो सर मैं कोशिश करूंगी हम बच्चों को मतलब ले जाके दिखाया जाए वो चीजें, तो बच्चों को मैडम, वो मेरे चीज बेटे वहां जाके देखेंगे अभी तो थोड़े दिन पहले बोला पापा मत जाना, कुछ नहीं है वहां पर, एक खड़ा है ताजमहल। आप बोर हो जाओगे पापा, मुझे पता है आपकी चॉइस क्या, आप नहीं पसंद करोगे उसको। तो क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने सिक्किम में ना एक पर्सन का देखा था। वो पर्सन शहीद हो गए थे 21 साल की उम्र में, आज 70 साल के हो चुके हैं। वो आज भी वो देश की सेवा करते हैं वहां पर। चाइना वाले डरते हैं उनसे, आज भी वो गन लेकर खड़े हैं। उनकी सैलरी आती है, उनकी सैलरी कटती है, उनके जूते और कपड़े रोज धुलते हैं, वो छुट्टी पर जाते हैं, उनका प्रमोशन होता है। 21 साल की उम्र में वो व्यक्ति शहीद हो गए थे। वो चीजें मुझे मतलब ऐसे इंटाइस करती है देखना करना। तो ताजमहल को आप इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? वो कहेंगे कोई मकबरा क्या यार, मौत हो गई ठीक है डाल दी, और 16वें दिन उसने शादी भी कर ली थी उसकी सिस्टर से, शायद कजन सिस्टर से। सर ताजमहल में तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग यही है कि वो बनाया क्यों गया, क्यों बताया गया था? वो प्रेम की मूर्त थी। जी सर, बच्चे लव स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैडम, तो वो लव स्टोरी कहाँ हुई? मैरिड सिस्टर, कजन सिस्टर, वो तो धोखा कर दिया। देखो हमारे फिजिक्स लेक्चरर भी ये कह रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने मतलब अपनी वाइफ से सर वो प्रेम करते थे सर, अपने वाइफ से प्रेम करते थे, उन्हीं की याद में तो उन्होंने बनवाया था ना मैडम। फिर उन्होंने उसी कजन से शादी कर ली हार्डली 16 दिन बाद मैडम। तो कहाँ, वेयर इज द मैटर ऑफ लव देयर? 16 डेज, वो लव कहाँ गया?
See, husband and अब wife लव is तो laughing on this. सर हस्बैंड वाइफ में लव नहीं होता क्या? तो मैडम मतलब बच्चों को आप इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, मतलब क्या आप पढ़ाएंगे उनको? अच्छा चलिए मैम बता दीजिए उनकी मैंने मृत्यु इसके क्यों हुई? ताजमहल के बारे में साइंटिफिक रीजन बता के, मतलब किस तरह से वो बनाया गया है, कैसी उसकी नींव बनी हुई है, मतलब ऐसी नींव है कि लकड़ी की उसकी नींव बनी हुई है, मतलब उसके साइंटिफिक रीजन बता के। प्रियंका आप बोलिए, ये कुछ सर वो और सर सिद्धिका बोल मतलब रही है और उसमें आप चुप बैठे। आपके तो पड़ोस में है ताजमहल, आपकी तो छत से भी दिखता है ताजमहल। तो मेरे घर से नहीं दिखता, बहुत दूर है ताजमहल यहाँ से। मैडम वो बाइनोकुलर लगा के देख लेना। चलिए बताइए बताइए पूजा, कमन। केमिकली देखें तो सर जो उसका स्टोन है ताजमहल का, वो कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्शियम मैडम कार्बोनेट से। राजस्थान वो से तो ऐसे लिया था कैसे है पत्थर, उसमें सर? हमारे बारिश मकराना का बारिश तो का पत्थर मतलब है। कोई मतलब इफेक्ट कम पड़ता है वो, मतलब अब तक धूमिल नहीं हुआ है जैसे पुरानी बिल्डिंग हो जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है ताजमहल में। वो ओके अभी भी ऐसे कैसी है। ओके ओके, मतलब आप इंटरेस्टिंग कर देंगे क्लास को, ये श्योर है पूजा? कलर चेंज हो रहा है, कोर्ट ने उसके ऊपर उद्देश्य उठाया है कि वहाँ पे जो हाँ तो वास्तव चेंज हो गया, ये चेंज तो हो रहा है, उसका ये पता येलो नहीं। हो रहा उसका है। कलरिंग देखो में सर भी मैडम मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन इतने साल हो गए मतलब उसमें इतना ज्यादा डाइऑक्साइड डिफेक्ट की नहीं वजह आया से जैसे बरसात और चीजों में आते हैं। यस 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 यस। कलर उसका डाउन हो गया है थोड़ा। इस रास्ता की क्वालिटी नहीं अब हुआ थोड़ा था, बहुत तो काफी रहेगा अच्छा ना है। मैम। राइट 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 राइट। चलो सब एनर्जाइज हो गए ना, ताजमहल और प्रेम की कहानियां सुन सुन एकदम एकदम मोटिवेट हो गए सारे। ठीक है, क्लास को इंटरेस्टिंग रखा करो, ठीक है, यू शेयर सम मोटिवेशन। और मुनेश आज बहुत शांत बैठे हैं। मुनेश आप हमारी क्लास में रहकर शांत नहीं रह सकते, थोड़ा बात कीजिए सबके साथ, हाय लो बोलिए, कोई क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए। जी कोई क्वेश्चन आपका? जी फिजिक्स सर। केमिस्ट्री बायो सब बैठे हैं। जो दिल करे। हाँ जो दिल करे। देखो फिजिक्स वाले और कॉमर्स वाले तो बिल्कुल तैयार है एकदम एनर्जी के साथ आपको आंसरिंग करने के लिए, और कंप्यूटर लिटरेट तो इतना शानदार देते हैं डेमो, आप देखो इनका वे। अगर आप क्वेश्चन नहीं गाएंगे तो हम गाना गवाएंगे सबसे, फिर अब सोच लीजिए आपको गाना गाना है या क्वेश्चन पूछना है। ठीक है फिर टाइम हो गया, सर को पता चलते टाइम हो गया, चलते सर को पता टाइम हो गया। चलते चलते गाना आता है। टाइम हो गया। ठीक है फिर गाना गाइए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा मत कहना, कभी अलविदा ना कहना। सभी गाओ भाई। चलते चलते चलते